بالکل جہاں یوٹیوبرس اور ولاگرس اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور اپنا لائف سٹینڈرڈ چینج کر رہے ہیں، وہیں شیراز اپنے علاقے کی لائف سٹینڈرڈ تبدیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں شیراز کی جانب سے بنائے گئے اسکول میں موجود ہوں اور شیراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ گانچے کا دور افتادہ علاقہ ہے، غرس ہے، اور سکردو سے اگر ہم یہاں ٹریول کریں تو تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ سڑک کی حالت انتہائی ناگفتہ ہے، انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، سہولیات یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن شیرازی ویلیج ولاگ ایک عرصے سے یہاں پر اپنے علاقے کے مسائل ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے۔ اب پورا پاکستان انہیں جانتا ہے اور انہوں نے اپنی شہرت کا، اپنی آمدن کا بہتر استعمال کیا ہے۔ اپنے علاقے میں ایک عدد اسکول انہوں نے بنا لیا ہے اور ساتھ ساتھ ایمبولینس بھی یہاں پر آ چکی ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ علاقہ دریائی کٹاؤ کی زد میں رہتا ہے تو کٹاؤ کو روکنے کے لیے بھی یہ اقدامات یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیراز ہمارے ساتھ ہیں، ان کے والد تقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس اسکول کے متعلق جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے گاؤں کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں شیراز کی جانب۔ شیراز، بہت زبردست کام آپ نے کیا ہے۔ جی بہت سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا اچھا گھر ہو، جی ان کے لیے اچھی گاڑی ہو، لیکن آپ نے اپنے علاقے کا سوچا ہے، اپنے علاقے کے لیے آپ نے بہت پیارا اسکول بنایا ہے۔ جی کیسے خیال آیا اسکول بنانے کا؟ اسکول بنانے کا پہلے اسکول چیئر بھی نہیں تھے یہاں پہ، جو چیئر تھے نا ان کے پاس وہ بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے تھے، یہاں پہ واش روم بھی نہیں تھے، اچھا سہولیت نہیں تھے یہاں پہ۔ اچھا، آپ اسی اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی صحیح۔ تو اب پہلے آپ کا اسکول کافی چھوٹا تھا، اب جی آپ کا اسکول ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہو گیا، خوبصورت بھی ہو گیا۔ دیکھیں اطراف میں جھولے بھی لگائے گئے ہیں، کھیل کود کے مواقع بھی یہاں بچوں کو اب میسر آتے ہیں۔ جی پہلے اسکول آنے کا دل کرتا تھا یا اب اسکول آنے کا دل کرتا ہے؟ آپ اسکول آنے کا دل کرتے ہیں، پہلے تو اسکول ٹوٹا پھوٹا تھا ہوا نا، اسی لیے مجھے پہلے آنے کا دل نہیں کرتا تھا اسکول۔ صحیح۔ ابھی اسی لیے دیکھیں اب اسکول آف ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس ٹائم تک اسکول میں موجود ہیں۔ اب اسکول سے لگتا ہے آپ کو پوری طرح محبت ہو گئی ہے۔ جی کیا چاہتے ہیں مستقبل قریب میں اس اسکول میں مزید کیا ہونا چاہیے؟ اسکول میں ابھی سب کچھ لگے ہے، ابھی کچھ نہیں چاہیے۔ مزید کچھ نہیں چاہیے؟ جی آپ نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی بس ایک کالج بنے؟ ہمارے گاؤں کے لیے ایک بن چاہیے۔ بن چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ دریائی کٹاؤ کی زد میں علاقہ رہتا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے علاقے کے لیے کوئی حفاظتی بند بنایا جائے تاکہ ان کا گاؤں بچ جائے۔ اب تک تقریباً ہزاروں کنال قابل کاشت اراضی جو ہے وہ دریا برد ہو چکی ہے بند نہ ہونے کے باعث، اور ان کو ادراک بھی ہے چونکہ ان کا گاؤں مختصر ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی کٹاؤ کے بارے میں ذرا بتائیے گا، چونکہ اسکول تو آپ نے بنا لیا ہے، ایمبولینس بھی آ چکی ہے، یہاں پر اطلاعات ہیں، بند باندھنا کیوں ضروری ہے گاؤں کے لیے؟ زمینیں جا رہی ہیں بہت ساری۔ جی یہاں پہ ہر سال سیلاب آتے رہتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے پانی آتے ہیں، یہ ایک یہاں پہ بند نہیں بنایا تو سارا اسکول بھی لے کے جائے گا، ایمبولینس بھی بھیج جائے گا۔ اچھا، آپ کا اسکول بھی خطرے میں ہے؟ جی بہت خطرے میں ہے۔ اس سال پانی زیادہ آ چکا تھا، اگلے سال پانی اور زیادہ آئے گا، تو حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم سے بھی ملے تھے اور جی انہوں نے بھی کچھ اعلانات آپ کے لیے کیے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ پورا ہوا؟ نہیں، میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک بند بنائیں گے، ہر سال سیلاب آتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں بنایا ابھی تک۔ صحیح، انہوں نے بتایا تو ہوگا آگے پیچھے بنانے کے لیے؟ جی بتایا ہے؟ جی صحیح۔ اور ساتھ ساتھ بتائیے کہ ہسپتال کی بات ہوئی تھی جب آپ پرائم منسٹر سے ملے تھے، تو وہ ہسپتال بن رہا ہے ابھی آپ کے علاقے میں؟ نہیں بن رہے۔ نہیں بن رہا ہے، امید ہے آپ کو بنے گا؟ یہ بنے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ ٹہلتے ٹہلتے بات کرتے ہیں، شیرازی صاحب نے بہت ساری باتیں ابھی کرنی ہیں اور یہ بہت زیادہ خوش ہیں اپنے اسکول کے بننے پر، چونکہ ان کا گھر بھی یہاں قریب میں ہی واقع ہے اور اطراف میں چونکہ گورنمنٹ اسکولس بھی بنے ہوئے، لیکن سہولیات یہاں پر ابھی بھی پوری طرح سے نہیں ہیں۔ اچھا تقی بھائی، یہ جو اسکول بنا ہے اور یہاں پر ابھی کمرے بھی شاندار ہیں، میں وزٹ کر چکا ہوں، بچوں کے لیے LEDs لگائی گئی ہیں، اس طرح کے مزید کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے آپ کے علاقے میں؟ جی، اور ہمارے جو غرس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو پتہ ہے بہت وسیع و عریض یہ علاقہ ہے۔ تو آپ کے سوال سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمارا یہ جو گاؤں ہے وہ پچھلے 40-50 سالوں سے دریائی کٹاؤ کی زد میں ہے، تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا بھی یہاں پہ کوئی سہولیات نہیں ہے، کوئی اچھا سکول نہیں تھا پہلے، نہ اچھا ہاسپٹل ہے، سڑکوں کی حالت اب بہت خراب ہے۔ تو دیکھیں ہم جو کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہماری فوزیہ باجی کی تعاون سے ہم نے یہ اسکول اوپن کیے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ذکی اکیڈمی کے نام سے ہم نے یہ اسکول کھولا ہوا ہے ان کے والد کے نام پر، اور انہوں نے ایک مہربانی اور کہ ہمارے یہاں پہ غریبوں کے لیے انہوں نے فری ایمبولینس سروس یہاں پہ چلا رہے ہیں۔
साथ साथ सिर्फ ये दोनों नहीं बल्कि साफ़ पानी का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप जानते हैं मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो गांव है वो दरियाई कटाव की ज़द में रहते हैं हर साल, तो हमने इस साल जी जान लगा के उनके ताउन से इस दफ़ा बंद भी बनाया। तो हमारा मुतालिबा सिर्फ़ और सिर्फ अभी यही है, जितना हमसे हो सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े NGOs हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, हम यही उनसे मुतालबा करते हैं। ये बंद बनाना ज़ाहिर सी बात है एक मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है हमारे गाँव के लिए। अगर एक बेहतरीन तरीके से बंद बनाए जाएँ तो ये गाँव महफूज रहेगा। बाकी ये अभी हमने जो आपका सवाल था, हमने एक मोहल्ले के लिए, एक एरिया के लिए तो हमने स्कूल यहाँ पे खड़ा किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले वक्तों में गाँव के दूसरे बच्चे भी स्कूल को ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिर भी ये उर्स से बहुत बड़ा एरिया है, तो नीचे भी 1-2 स्कूल अगर इसी तरह बन जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सही सही। शिराजी, आप मुझे बताइएगा, स्कूल तो आपका बन चुका है, आपके दिल में ख्वाहिश नहीं है कि यहाँ पर कॉलेज भी बने? कॉलेज कॉलेज बनना चाहिए यहाँ पे। नहीं, अभी आप खुद कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 2 क्लास में। तो क्या उम्मीद करते हैं किस क्लास तक पहुँचने तक आपके इलाके में कॉलेज आ सकती है? मैं 9 क्लास में। अच्छा, आप जब 9वीं क्लास में होंगे तब तक यहाँ पर कॉलेज बनेगी। चलो, ये शिराजी साहब ने पहले भी कहा था, 2 साल कबल जो इनके व्लॉग्स थे, अपने गाँव के मसाइल ये हाईलाइट करते थे, तब भी उन्होंने इस स्कूल की ज़रूरत को महसूस किया था और मुखिर हज़रात से अपील की थी कि इनके इलाके में स्कूल बनाया जाए। अब खैर से यहाँ पर स्कूल बन चुका है। अब इन्होंने ख्वाहिश की है कि इनके इलाके में कॉलेज भी बने, और जब तक ये जमात नहुम में जाते हैं तब तक यहाँ पर कॉलेज बननी चाहिए, और उम्मीद है कि बनेगी। क्यों शिराजी, ऐसा ही है? जी इंशाल्लाह बनेगी यहाँ पे। सही। यहाँ जो बच्चे हैं आपके इलाके के, चूँकि आप इन तमाम बच्चों के आगे टहलते टहलते आपका स्कूल भी हम दिखाते हैं, सहन बड़ा प्यारा बनाया है आपने, और खेलने की जगह भी आपके लिए यहाँ पर है, और साथ साथ अगर हम क्लासरूम्स की बात करें, बड़ी कुशादा क्लासरूम्स बनाई गई हैं, और ऊपर एक हॉल में शिराजी साहब मुझे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पर सेकंड टाइम भी क्लासें होती हैं, और यहाँ पर असातिज़ा ने बताया कि वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और बच्चों को AI खुसूसी तौर पर सिखाया जाता है। तो शिराजी साहब के साथ हम ऊपरी क्लास में चलते हैं और ऊपर बच्चों से ही बात करते हैं, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। यकीनन इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस इलाके के लिए, इनके बच्चों के लिए, चूँकि इनके दोस्त यार हैं, सारे हम उम्र बच्चे हैं। जो आपके दोस्त यार हैं शिराजी, मुझे बताइएगा, थोड़ी देर ठहरिएगा, आपके कुछ दोस्त भी आपके साथ आपके मुख्तलिफ व्लॉग्स में नज़र आते थे, वो दोस्त भी खुश हैं स्कूल बनने पर? जी बहुत खुश है, यहाँ पे झूला लगाते रहते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ाई भी करते हैं झूले के पढ़ाई साथ? करते हैं। अब पढ़ाई के बाद शाम के लिए यहाँ झूले के लिए आते हैं? जी शाम के लिए नहीं, 12 बजे। सही। 12 बजे ब्रेक होते हैं। तो जहाँ शिराजी, जहाँ पढ़ाई ज़रूरी है वहाँ खेल भी ज़रूरी है। आपके इलाके में कोई ग्राउंड है, यहाँ कोई बड़ा ग्राउंड है? बड़ा ग्राउंड नहीं, वो है ना, वो खेत है। अच्छा, उसी खेत में आप लोग खेलते हैं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड भी बनाना ज़रूरी है तकी भाई, क्योंकि खेलों के मौके भी बहुत अहम होते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर बताइएगा, क्योंकि इस इलाके की बड़ी रिच हिस्ट्री रही है, ये किसी ज़माने में बहुत बड़ा शहर हुआ करता था बुजुर्गों के मुताबिक। तो यहाँ पर कोई पोलो ग्राउंड, कोई फुटबॉल ग्राउंड वगैरह है? बिल्कुल, पहले हुआ करता था यहाँ पे पोलो ग्राउंड, एक था बहुत मशहूर था, जगह जगह से लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते थे, बड़ा उस वक़्त एंजॉय करते थे लोग। लेकिन अभी चूँकि आप जानते हैं हमें ग्राउंड से भी ज़्यादा अभी हमें अपने घर को महफूज रखने के लिए, यहाँ अभी आप देखें ये स्कूल बनाए हैं, लोग घर बना रहे हैं, तो अभी हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे ये खेत खलियाँ तो सारे दरियाबुर्द हो गए, अभी जो हमारा घर है, ये स्कूल है, ये महफूज रहें, उसके लिए एक बंद ज़रूर चाहिए हमें। सही सही सही। वो जेन्युइन मसला इस इलाके का, और इस इलाके की ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं। इस वक्त चूँकि ख़ज़ा का मौसम यहाँ पर चल रहा है, बड़ी रिच यहाँ की फसलें हुआ करती है, बागात यहाँ के बड़े मशहूर हैं, फलों के हवाले से, सब्जियों के हवाले से ये इलाका बहुत मशहूर माना जाता है। और ये आइडियल क्लास है। बाकी क्लासों में भी हम विज़िट कर चुके हैं। यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, और अभी उस्ताद मोहतरम ने हमें बताया, तो यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं मुख्तलिफ इलाकों से, और इन्हें AI भी सिखाया जा रहा है। तो शिराजी ज़रा बताइएगा, आप भी कंप्यूटर से शगफ़ रखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं आप भी? जी सीखते हैं। कौन कौन सी चीज़ें कंप्यूटर की आपको पसंद है? कंप्यूटर की पेंट करना मुझे बहुत पसंद है। ठीक, इसके अलावा? इसके अलावा सिर्फ पेन पसंद है और कुछ नहीं है। सही, ठीक हो गया। तो आप वैसे मुझे ये बताइएगा, बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं? आजकल साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, आपका भी इंटरेस्ट है, और अभी आप पेंट में आपने यकीनन कुछ पेंटिंग्स बनाई होंगी, कुछ लोगों की तस्वीर आपने बनाई होंगी। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़ा होकर पायलट बनना चाहते हैं, जहाज़ उड़ाना चाहते हैं? जी यहाँ तो कोई एयरपोर्ट नहीं है गुरसे में। कर दो, जाके चलाएंगे ना। सही है, सही सही। जी अज़ाइम, बड़े आपके माशाल्लाह, आप वैसे भी इस वक्त आप
वैसे भी जहाज़ उड़ा रहे हैं आप इस वक्त। अल्लाह ताला ने आपको काफ़ी ऊंचाई से नवाजा है और बहुत बुलंदी से नवाजा है, इस उम्र में सारा पाकिस्तान आपको जानता है। कौन सा जहाज़ है जो चलाना चाहेंगे आप? मैं तो जहाज का नाम नहीं आता। मुसाफिर तैरा चलाएंगे या फिर जंगी जहाज़ चलाएंगे? मुसाफिर। मुसाफिर तैरा आप चलाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर शिराजी साहब की ख्वाहिश आज हमने सुनी, ये पायलट बनना चाहते हैं और कंप्यूटर से भी इनको शगफ हासिल है। यहाँ पर इनके उस्ताद मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि शिराजी साहब व्लॉगिंग तो बड़ा शानदार करते हैं, इलाके के मसाइल भी हाईलाइट करते हैं, पढ़ाई में ये कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको वेलकम करते हैं ज़की एकेडमी में, शिराजी विलेज में। तो शिराज व्लॉगिंग के साथ पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो पढ़ता भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उसको इंटरेस्ट यही पायलट में है। अभी हमने रिसेंटली इसी हवाले से एक क्लास भी रखी थी, जिसमें हमारे एक पायलट ने पूरी जहाज़ दिखाए थे और इन चीज़ों के बारे में दिखाए। तो वो सवाल पे सवाल कर रहे थे कि कैसे उड़ाते हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उसको पायलट का वाकई में शौक़ है उसको। सही, हम दुआगो हैं, ये इंशाल्लाह पायलट बनेंगे, इनमें पायलट बनने की सारी सलाहियतें मौजूद हैं। अब इनके दोस्त यार भी यहाँ पर हैं। शिराजी साहब आपके सबसे करीबी दोस्त कौन है वैसे? करीबी दोस्त तो नीचे है ना। नीचे है, वो इस क्लास में नहीं है। तो इनसे भी आपकी दोस्ती तो होगी ना? हो सही, इनसे हम बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा आप बताएं आपका नाम क्या है और कैसा लग रहा है? अब आपका स्कूल बन चुका है शिराजी साहब के तवसुत से, अब इस स्कूल में आना कैसा लग रहा है? पहले स्कूल की हालत क्या थी? पहला स्कूल की हालत बहुत टूटा हुआ था, फिर अच्छा हुआ है। अच्छा, तो अभी खुश हैं आप? जी। सही। शिराजी से मज़ीद क्या तवक्कुआत रखते हैं कि इस स्कूल में मज़ीद क्या चीज़ें होनी चाहिए? कुछ नहीं। सही, सारी चीज़ें आ गई जी। आपके दोस्त भी आपसे खुश हैं। जब आपके दोस्त आपसे खुश हों शिराज, जी। तो समझ जाओ कि आपकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। वैसे बताइएगा आपका टाइम कैसे गुजरता है? व्लॉगिंग के अलावा क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ हैं? खाना आप टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं या फिर रूटीन आपके हट चुके हैं? खाना टाइम पे खाते हैं। पहले सुबह सुबह हम स्कूल आते हैं, फिर स्कूल से मदरसा जाते हैं, फिर ट्यूशन के लिए, फिर रात को सो जाते हैं ना। सही। तो इस पूरे टाइम में व्लॉगिंग के लिए टाइम कब निकालते हैं? व्लॉगिंग के लिए टाइम तो ट्यूशन के बाद। ट्यूशन के बाद। जी। ठीक। तो स्पोर्ट्स वगैरह भी आप खेलते हैं? कौन कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल पसंद है। जी। तो शोएब अख्तर के हवाले से भी आपका एक मशहूर व्लॉग था, आपने उन्हें अपना फेवरेट खिलाड़ी करार दिया, उनसे मुलाकात भी आपकी हुई और बड़े आइडियल प्लेयर हैं, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया, पाकिस्तान के स्टार हैं। तो क्रिकेट का शौक़ पैदा नहीं हुआ? जी। क्रिकेट का शौक़ पैदा नहीं हुआ? नहीं। क्रिकेट पसंद नहीं है आपको? नहीं है। फुटबॉल खेलते हैं? जी। किस पोजीशन पे खेलते हैं फुटबॉल? सेंटर में खेलते हैं, गोलकीपर होते हैं या फिर? सेंटर में। सेंटर में। कितने गोल किए अभी तक? अभी तक 5। 5 गोल टोटल? टोटल गोल 5 किए अभी, एक मैच में 5 किए? या एक मैच में 5 एक किए। मैच में, बहुत अच्छी। इंशाल्लाह जी मुस्तकबिल करीब में रोनाल्डो का रिकॉर्ड भी आप तोड़ेंगे। एक मैच में 5 गोल यकीनन बहुत बड़ी बात है। तो ये शिराज का इलाका है। इलाका खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन जिस तरह इनके वालिद मोहतरम तकी साहब ने बताया कि ये पसमानदा है और यहाँ पर हुकूमती तवज्जो की बड़ी ज़रूरत है। और चूँकि हुकूमती अहदेदारों से इनकी मुलाकातें भी रही हैं माज़ी करीब में, शहबाज शरीफ साहब से बराह रास्त मिले हैं और शहबाज शरीफ साहब से मिलने का वाक़या पहले इनसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो तकी भाई, जो मुतालिबात हैं एलियान इलाका के, चूँकि आप इस इलाके में रहते हैं और इस इलाके को आपने छोड़ा नहीं है, बहुत सारे लोग मकबूल होने के बाद, मशहूर होने के बाद अपने इलाके से शिफ्ट कर जाते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर हैं, बदस्तूर आप इलाके के मसाइल से आशना हैं। बुनियादी मसला आपने बताया है बंद बांधने का, इसके अलावा यहाँ पर लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में ज़रा बताइएगा कि लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं, खुराक क्या है, रहन सहन क्या है, सड़कों का निज़ाम क्या है? अच्छा असल में ना गुर्स में सबसे ज़्यादा मसला इसी वजह से लोग पीछे रह गए हैं, क्योंकि दरियाई कटाव की वजह से ना लोग को बहुत गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम ये समझते हैं अगर यहाँ पे प्रॉपर एक बंद बनाया जाए तो यहाँ पे इतना, आपने देखा ये बड़ा मैदान है, लोग अपनी ज़मीनों को दोबारा आबाद कर सकेंगे, लोग को बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी ये बंद ना होने की वजह से लोग अभी भी गुर्बत के शिकार हैं। सही। बुनियादी मसला बंद का है और चूँकि ज़मीनें यहाँ की बड़ी ज़रख़ेज़ हैं, जिस तरह तक बता रहे थे कि यहाँ अगर ज़मीनी कटाव को रोका जाए तो लोग इन्हीं फसलों के ज़रिए अपना गुज़र बसर चला सकते हैं। तो आए शिराजी, अब चूँकि इनके स्कूल का विज़िट हो चुका है, स्कूल माशाल्लाह से बहुत बड़ा स्कूल आपने बनाया है और मुस्तक़बिल करीब में यहाँ पर कॉलेज की क्लासें भी शुरू होंगी। तकी भाई, चलते चलते ज़रा टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि आजकल के दौर में अभी जिस तरह शिराजी एक टेक्निकल आदमी है, कम उम्री में ही उन्होंने व्लॉगिंग सीखी, अपना नाम भी बनाया और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ स्टैंडर्ड भी उनका बेहतर हो रहा है।
टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से इस तरह के दूर अफ्तादा इलाकों में क्या इकदाम किए जा सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, समाजी खदमतगार क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे कंप्यूटर्स लाए हैं, ताकि हम अभी हमारा इरादा है बच्चों को एआई सिखाएं। अभी माशाल्लाह से अमेरिका से आप तस्वीर कर सकते हैं, अमेरिका से लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं माशाल्लाह से। तो अभी हम बेसिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इन चीज़ों को भी देखेंगे, एआई की तरफ भी जाएंगे और इंशाल्लाह कंप्यूटर्स पे वगैरह पे तो हम काम कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी ये जो सारे आपने स्कूल की ये रौनक सब कुछ अगर देख रहे हैं, तो इसमें हमारी फौजिया बाजी, उनकी मेहरबानी, अगर वो हमारे साथ ना होती तो ये बहुत मुश्किल था। तो उनको मैं ख़ास ट्रिब्यूट करना चाहूँगा आपके चैनल की तवज्जुह से। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर शिराजी से बस आखिरी बात हम करते हैं। शिराजी साहब ने थोड़ी देर के लिए अपनी लुक तब्दील कर ली थी, बड़े अच्छे लग रहे थे आप लंबे बालों में, आपने क्यों उतारे? लंबे बाल पसंद है आपको? जी तो स्कूल में रखने नहीं देते आपको लंबे बाल? नहीं, काट देते हैं कंची से। सही। स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके बाल लंबे हों, और शिराजी साहब के पहले बाल लंबे थे, यहाँ तक मुझे याद है। जी एक बार जब हम आए थे, अभी कटिंग बड़ी सख्त हो गई, तो असातिज़ा लगता है बहुत सख्ती करते हैं सफाई के मामले में। जी बहुत सख्ती करते हैं। तो आप मुतालिबा करते हैं असातिज़ा से कि बाल रखने की इजाज़त दी जाए आपको? नहीं, नहीं, मुतालिबा तो आप कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। सही। चले जी, असातिज़ा का एहतराम है कि उस्ताद ने जो कह दिया बस कह दिया, वो आखिर है। तो असातिज़ा की बात मानने वाले लोग ही बड़े लोग बनते हैं। तो आप तो बड़े आदमी बनना चाह रहे हैं, पायलट बनना चाह रहे हैं, उसके लिए उस्ताद की बात मानना ज़रूरी है। फेवरेट उस्ताद कौन है आपके? हाँ, फेवरेट उस्ताद कौन है? सर बशीर है। सर बशीर। जी वो क्या पढ़ाते हैं आपको? वो मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। तो आपको मैथ पूरी आती है? जी अक्सर बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, आपको पूरी मैथ आती है? आते हैं। सही। तो इसके अलावा भी शिराज चूँकि व्लॉगर भी है और साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने स्कूल के उसमें हिस्सा लेते हैं। नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, मिलनगमा भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। तो चूँकि शिराज आज आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आखिरी टाइम है प्रोग्राम का और इस व्लॉग का, तो मुझे ज़रा कुछ सुनाएंगे अपने बच्चे, अपने दोस्तों को जो आपके लाखों फ़ैन हैं, उन्हें कुछ सुनाएंगे आखिर में? नात नात आते हैं। चलें सुनाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने को या मोहम्मदी यूं तो क्या देखा नहीं, माशाल्लाह। देखने को या मोहम्मदी यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब वो कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, मीम का पर्दा हटा कर वो निगाहे शौक से, मीम का पर्दा हटा कर वो निगाहे शौक से, मुस्तफ़ा को देख ले, मुस्तफ़ा को देख ले, जिसने खुदा देखा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शिराज की कहानी है और इस कहानी का अब आगाज़ हो चुका है, और जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए शिराज एक आइडियल के तौर पर सामने आए हैं कि यूट्यूब पर मकबूल होने के बाद, मकबूलियत हासिल करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के बजाय दूसरों के हवाले से सोचना है, और इसका आगाज़ शिराज ने किया है।